Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor. And as you can see on the board कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? Inertial and non-inertial frame. टॉपिक देख सकते हैं inertial and non-inertial frame. Okay. So starting with this, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े? बिल्कुल आपने पढ़े होंगे. So what are Newton's laws of motion? We are not going to discuss about that. But अभी हम पढ़ने वाले inertial frame. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम से कैसे रिलेटेड है ये अभी डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम आर दोस फ्रेम इन व्हिच यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज वेरी इजीली. आप न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. बट टॉकिंग अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम होते हैं जहां पर न्यूटन्स के लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू apply Newton's laws, you will get the answer, but that will not be a good answer. That will not be the right answer. Okay, so you will fail to get the desired answer. So, what are inertial frame? Inertial frame are those frames in which you can apply Newton's laws of motion. And what are non-inertial frames? Those frames in which you will not be able to apply Newton's laws of motion. पर एक्चुअली में inertial और non-inertial frame इससे भी थोड़ा सा अलग है. मतलब और ज्यादा डीप में जाकर हम इसको पढ़ सकते हैं. So basically inertial and non-inertial frame का समझते हैं. Suppose कर लीजिए कि हमारे पास we are having a car. Okay, so this is a car. I'm not a good painter, but I can draw the car easily. ठीक है, आपको समझाने के लिए बहुत इजी कर सकता हूँ. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं. Let there be a person sitting inside the car and let there be a box. Look at this box because this is a most important box. ठीक है, let we are having a box that is almost 2 kg. So suppose कर लीजिए एक फ्रेम यहाँ पर है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है. ठीक है, तो जब कार इनिशियल सपोज कर लेते हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0 and moves a distance of 400 meter in time t is equal to 20 seconds. Suppose the car started from rest and moves a distance of 400 meter in time t is equal to 20 seconds. Okay, so if someone is watching the car, if someone that is what we call the observer is observing the car from outside, then the observer is at rest. The observer is at rest. Then this frame is called inertial frame. Okay, so this frame is called inertial frame. Now talking about the non-inertial frame. Okay, talking about this boy, let us suppose this boy's name is Atul or someone else. Okay, so when Atul sees the box, he sees, because Atul और जो कार है दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. अतुल और कार यदि सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो अतुल वह व्यक्ति है जो ये चीज देखेगा कि क्योंकि अतुल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, अतुल सपोज करेगा कि बॉक्स रेस्ट पर है. बट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वर जो बाहर से है उसे क्या दिखाई देगा, वो मोशन पर. तो ये जो हमारे लिए कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा. ठीक है, और यदि मैं अतुल की बात करूं तो अतुल क्या हो रहा है, क्योंकि कार मूव कर रही है तो अतुल भी मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है. सो द पर्सन हैविंग एक्सेलरेशन विद हिम, लेट अस सपोज दिस बॉय इज अतुल. इट इज नॉट आउटसाइड, मैंने एक बाहर बना दिया, यहां पे बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो लेट अस सपोज अतुल is moving with some uniform acceleration a. So the Atul is said, the frame of reference is said to be non-inertial. क्या कहलाएगा वो? Non-inertial frame कहलाएगा. Okay, so inertial frame क्या है? If the frame is at rest, if the frame is at rest, we can say that this is inertial frame. And if the frame is moving with the observer is moving with a constant acceleration, uniform acceleration, then the frame is said to be non-inertial frame. अब इसका यूज क्या है ये चीज समझेंगे. सपोज कर लेते हैं बाहर कोई व्यक्ति है, तो बाहर के व्यक्ति के लिए इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा. सपोज कर लेते हैं कि बॉक्स का मास 2 kg, देन फोर्स निकालने के लिए F इक्वल टू क्या होता है, m. मास पता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू m हम फार्मूला पढ़ चुके हैं. ओके, सो talking about acceleration, we can use the formula S is equal to ut plus half multiplied by ut square.
S is equal to 400 meter, and what is U? It is 0. What is the value of T? It is going to be 20. Half multiplied by 8. What is the value of T? Again, it is 20 square. Okay, so it is going to be 400 is equal to 20 multiplied by 0. It is 0. So we don't have to write it here. What is 20 square? It is going to be 400 multiplied by 8. So it is going to be 200 200 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो फाइनली जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma. सो द कार्स इंजन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, मास कितना है हमारे पास, 2 kg, एक्सेलरेशन 2 है, तो 2 2 जा 4 न्यूटन. सो द कार का जो इंजन है वो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर. बट टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑब्जर्वर हु इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, बट ही इज मूविंग विद द बॉक्स, तो उसे क्या लगेगा, बॉक्स रेस्ट पर है. बॉक्स रेस्ट पर है तो बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इसके हिसाब से बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. अब यदि बॉक्स का एक्सेलरेशन है तो फोर्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय a, 2 multiplied by 0, so it is going to be 0 Newton. So according to the second observer, who is Atul, he will say the force is acting on the box is of 0 Newton. So no force is acting on the box. But according to the observer, it is the force of 4 Newton. So कौन सही है? So मैं आपको बता देना चाहूंगा, इनर्शियल फ्रेम से देखने वाला ऑब्जर्वर सही, फिर वो गलत हो जाता है. तो यहाँ पर न्यूटन के लॉस गलत होते नजर आते हैं. तो यदि न्यूटन के लॉ गलत हो गए तो फिर ये परेशान हो जाएंगे. तो यहाँ पर आता है नया कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, PSEUDO. स्यूडो फोर्स, यहाँ पर P साइलेंट होता है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहे होंगे तो हम एक ऐसा फोर्स जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, एक एक्चुअली फोर्स होगा ही नहीं, हम वो फोर्स जबरदस्ती में ऐड करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स. सो इट इज गोइंग टू बी F equal to ma in that 0. So 0 plus pseudo force, 0 plus pseudo force का फॉर्मूला M is equal to ma. जहाँ पर m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, और वहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन of the observer who is moving in the non-inertial frame. So 0 plus 2 multiplied by 2, it is again going to be 2 Newton. So हमारा आंसर again है 2 Newton. So I don't think कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें. ये 2 न्यूटन यहाँ से इतना दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ. So it is going to be 2 न्यूटन. Okay, so this was the solution. I hope आपको solution पसंद आया होगा. So take care, goodbye and thank you. तब तक के लिए फिर मिलेंगे बाद में. Bye.